Good morning, everybody. This is Vishwamitra Sir. Today, I'm just telling you a very beautiful story. That name is Festival of Eid. This is written by Munshi Premchandra. You know about the Munshi Premchandra. Just I want to tell you about some things about Premchandra. His period is 1880 to 1936. Is regarded as one of the foremost writer of the 12th century Hindustani literature. Actually, he wrote whatever the story is based on in rural areas and countryside areas. Like they experienced from their whole lives from their rulers area and urban areas. The difference between these all these things they put inside the his story. So there is one more thing is mentioned in this story. I mean about the Munshi Premchand. He is known for his lucid styles, moving descriptions of the poor and downtrodden and sharp characterizations. Characterizations. It means the clarity and then the quality. It means the. Then he present an authentic picture of the village India in his novel, short story and plays. Authentic pictures. What would be happens? क्या होता है? I mean, just आप can think by using your mind what happens in the village. Mostly users can see. I mean, village में क्या होता है? बच्चे गरीब होते हैं, लोग गरीब होते हैं. I mean, गाय का पालन करते हैं, लेकिन यही होता है दूध ये सारी चीज़ें खेती गृहस्थी. सो हिज स्टोरी इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. फेस्टिवल ऑफ ईद. ओके, in this story there is a young boy, okay, who buy a very special gift from his for his grandmother ऑन ईद फेस्टिवल्स पे. वो एक क्या है कि अपने दादी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट खरीदता है. क्यों खरीदता है, क्या खरीदता है और ये ऐसा कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे स्टोरी पढ़ने के बाद. ठीक है, पर स्टोरी पढ़ने से पहले एक कहता है कंडीशन सोचने के लिए वो दे रहा है हमको. क्या दे रहा है कि आप कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन ऑन अ फेस्टिव ओकेजन you loved somebody too much. Okay, you have to purchase some things for him, I mean for somebody, but hardly you have a money. The gift is very expensive, I mean not, out of your pocket money. Then how would you purchase, and what type of the sacrifice you have to give, you have to do for purchasing that gift. We realized, we understood all of these things from this story. A fully 30 day after Ramadan comes Eid. How wonderful and beautiful in the morning of Eid. The tree looks greener, the field more festive. The sky has a lovely pink glow. The village is agog with excitement. The boys are most excited than the others. They have been thinking about it all the times. Okay, so after that, the boys are more excited than the others. They have been talking about it all the times. At long last, the day has come, and now they are impatient with people for not hurrying up. Their pocket bulges with coin like the stomach of the pot-bellied Kuber. They are forever taking the treasure out of their pockets, counting and recounting it before putting it back. देखिए, ईद का फेस्टिवल आया था लगभग रमादान
रमज़ान के 30 डेज़ बाद क्या होता है कि ईद आता है, उसको रमज़ान जैसे कुछ बोलते हैं हम लोग। रमज़ान के बाद क्या होता है कि 30 डेज़ बाद हमारा ईद आता है, ठीक है। तो ये जो सुबह हुई थी ईद की, बहुत सुंदर हुई थी, बहुत अच्छा हुआ था। आई मीन वंडरफुल मॉर्निंग हुई थी। पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे थे, है ना। मतलब एक नहीं होता त्यौहार का मौसम चारों तरफ फैला हुआ था, सारे लोग तैयारियां कर रहे थे मस्ती में। आसमान भी एकदम नीला नीला खूबसूरत दिखाई दे रहा था, चमक रहा था। गांव के बच्चे जो हैं, गांव के लोग और गांव के बच्चे सभी एक्साइटेड दिख रहे थे, स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा। वो हमेशा बात करते रहते थे बच्चे। क्या बात करते रहते थे बहुत दिन से कि भाई अब फेस्टिवल आएगा, अब फेस्टिवल आएगा, हम लोग को ये करना है वो करना है ना, बच्चे स्पेशली। उसी तरह वो क्या होता था कि जब भी ईद फेस्टिवल होता था उसके लिए वो लोग कुछ पैसे कलेक्ट किया करते थे अपने पिगी बैंक में। नहीं होता है बच्चे सब पिगी बैंक में पैसे कलेक्ट करते हैं, उसी तरह वो बच्चे सब पिगी बैंक में पैसे कलेक्ट करते थे। तो बार बार काउंट करते थे, जब भी रखते थे वो लोग काउंट करते थे। नहीं होता, हम भी लोग कभी बचपन में करते हैं, उसी तरह काउंट करते थे। उसी में से एक लड़का था जिसका नाम था महमूद। महमूद, समय आया ईद का, सभी बच्चे काउंट करना शुरू कर दिया अपना मनी पिगी बैंक से निकाल कर। महमूद काउंट कर रहा है 1 2 10 12, वाह 12 मनी हमारे पास है। अब उसी तरह दूसरा मोहसिन, मोहसिन भी अपना काउंट कर रहा है 1 2 3 8 9 15, वाह 15 पाइस मेरे पास है, 15 पाइस। पाइस यहाँ पर एक करेंसी का नाम दे रहा है, ठीक है, 15 पाइस। अब ये अपने सारे बच्चे पैसे काउंट कर रहे हैं और काउंट करके वो सोच रहे हैं कि अरे यार हम लोग मेले में जाएंगे तो ये कर देंगे, टॉयज कर देंगे, हम लोग स्वीट्स कर देंगे, पेपर पाइप्स कर देंगे, रबर बॉल्स कर देंगे, ऐसे बहुत सारे चीज़ कर देंगे, खूब मस्ती करेंगे हम लोग। सभी बच्चे खुश हुए। उसी तरह हमीद भी बहुत खुश था उस दिन, बहुत खुश था, है ना। वो केवल 4 साल का लड़का था। हमीद इज़ ओनली 4 साल का लड़का था, है ना। ड्रेस उसके अच्छे नहीं थे, पतला था, है ना। फैमनेस लुकिंग, मतलब देखने में बहुत ही सिंपल साधारण सा बच्चा। उसके पिताजी कलरा एक बीमारी होती है, कॉलरा से वर्षों पहले मर चुके थे। आई मीन पिछले साल मर चुके थे। उसको आइडिया भी नहीं था, मतलब सोच भी उतना मैच्योर नहीं था। 4 साल का बाद होने के बाद मैच्योर हुआ, बट इससे पहले वो समझ नहीं पाया था। बट वो पूछता था अपने दादी माँ से। उसके कुछ ही दिन बाद, पिताजी के मरने के बाद कुछ ही दिन बाद उसकी माँ भी मर चुकी थी। हमीद जब भी सोता था अपने दादी के गोद में सोता था। दादी का नाम था अमीना, दादी का नाम था अमीना, याद रखिएगा। अमीना के गोद में सोता था। लैप यानी कि गोद होता है। अब दादी से पूछता था अपने पिताजी के बारे में, तो दादी बोलती थी कि तुम्हारे पिताजी पैसा कमाने के लिए विदेश गए हैं, है ना। वो वहाँ से बहुत सारे सिल्वर शैक अपलोड यानी कि बहुत सारे चीज़ वहाँ से लेकर आएंगे, पैसे लेकर आएंगे, मनी लेके आएंगे तुम्हारे लिए, गोल्ड लेके आएंगे, सिल्वर लेकर आएंगे। वहाँ से वो एब्रॉड गए हैं, मतलब विदेश की बात कर रहा है, ठीक है। फिर अपनी माँ के बारे में पूछता हमीद दादी से, तो उसकी माँ भी वो कहता है कि तुम्हारी माँ अल्लाह मियाँ के पास गई है ना। अल्लाह मियाँ मेरे भगवान के पास गई है। भगवान के पास किस लिए गई है? तो लवली गिफ्ट लाने के लिए तुम्हारे लिए, है ना। दिस मेक्स हमीद वेरी हैप्पी। इट इज़ ग्रेट टू live on hopes. For a child there is nothing like hopes. A child imagination can turn a mustard seed into a mountain. Hamid has no shoes on his feet. The cap of his head is swelled and happy. He knows that when his father comes back with the sacks full of the silver and his mother with gift from Allah, he will be able to fulfill
all his heart desires, then he will have more than महमूद, मोहसिन, नूरे, शमी। ये चार इसके फ्रेंड थे। कौन कौन अमित के चार फ्रेंड थे? महमूद, मोहसिन, नूरे, शमी। याद रखिएगा इसके चारों फ्रेंड्स के नाम, नूरे एंड शमी। ओके, महमूद और मोहसिन के बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो ये चार इसके फ्रेंड थे। तो क्या हुआ कि इस बात को दादी जब भी बताती थी कि तुम्हारे पापा विदेश गए हैं पैसे लाने और सिल्वर कॉइन से ऐसे सारे चीज़ लाने गए हैं, माँ तुम्हारी अल्लाह मियाँ के पास गई है और वहाँ से बहुत सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, बहुत प्यारी प्यारी। तो वो उसी बात सुनकर बहुत खुश होता था। उसके पास एक आशा था कि अरे यार, अब मेरी दादी, अब मेरी माँ आएगी, मेरे पापा आएंगे तो ये सारे चीज़ लेकर आएंगे। उसके पास आशा के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। बच्चा इमेजिनेशन ऐसा करता था, है ना, कि एक छोटी सी चीज़ से वो मेरी बड़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़। हमीद के पास पैर में पहनने के लिए शूज़ नहीं थे, है ना, और कैप जो था उसका, वो कैप बहुत ही गंदा था, मतलब फटा पुराना था, है ना, और इसके जो गोल्ड थे, थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक, उसके जो गोल्ड थे वो मतलब कि ब्लैकिश हो गए थे, काले हो गए थे। फिर भी हमीद बहुत खुश रहता था। वो जानता था कि जब उसके पिताजी आएंगे, है ना, तो पूरे सिल्वर का एक मतलब सिल्वर लेकर आएंगे, पूरा भर कर सिल्वर लेकर आएंगे। और उसकी माँ जब आएगी तो गिफ्ट लेकर आएगी अल्लाह मियाँ से। तब वो हर चीज़ों से भर जाएगा, उसका खुशी पूरी वापस आ जाएगी। देन वो उसके पास सबसे अधिक हर चीज़ हो जाएगा, खिलौने हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। वो ऐसा सोचता है। किससे ज़्यादा हो जाएगा? तो महमूद से, मोहसिन से, नूरे से, शमी से। यहाँ तक इस स्टोरी में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है ये चैप्टर, अगले फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे अगले पार्ट के बारे में बताऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।